Good morning everyone. I hope you all are doing well. Yesterday we completed till question number 9 of exercise 12.2. Today we will complete this exercise. So, question number 10 says find the value of p for which आपको p की value find out करनी है. First one is 2/9 raised to power 4 multiplied by 2/9 raised to power minus 6 is equals to 2/9 raised to power minus 2p. When the bases are in multiplication, powers add. A raised to power m multiplied by a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. तो ये क्या हो जाएगा 2/9 raised to power 4 plus minus 6 equals to 2/9 raised to power minus 2p. तो ये हो जाएगा 2/9 4 minus 6 is equals to 2/9 minus 2p. Since the bases are same, so we can deal with the powers. So 4 minus 6 is equals to minus 2p. Minus 2 is equals to minus 2p. p equals to minus 2 upon minus 2. ये कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 1. So the value of p is 1. Let's do it. Second part. 3/2 raised to power minus 2 divided by 6/7 raised to power 0 is equals to 2/3 raised to power 2p. Find now. This is 3/2 raised to power minus 2. Anything raised to power 0 is 1. So divided by 1 equals to 2/3 raised to power 2p. ये कितना बनेगा 3 raised to power minus 2 upon 2 raised to power minus 2 is equals to 2 raised to power 2p upon 3 raised to power 2p. अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो पावर्स ऐड में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो ये होगा 2/3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 2/3 रेज टू पावर 2p. सिंस द बेसिस आर सेम 2 इज इक्वल्स टू 2p. p is equals to 2/2 which is 1. So the value of p here is also 1. Let's do question number 3. इसका थर्ड पार्ट करते हैं. minus 1/2 raised to power minus 10 minus 19 minus 1/2 raised to power minus 19 divided by minus 1/2 raised to power 8 is equals to minus 1/2 raised to power minus 2p plus 1. सो ये डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट. minus 1/2 raised to power minus 19 minus 8 is equals to minus 1/2 raised to power minus 2p plus 1. ये होगा minus 1/2 raised to power minus 27 is equals to minus 1/2 raised to power minus 2p plus 1. So since the bases are same, यहाँ पे आप लाइन लिखोगे ये. Since the bases are same, we may equate the powers. So minus 27 is equals to minus 2p plus 1. Minus 27 minus 1 is equals to minus 2p. Minus 28 is equals to minus 2p. Minus 28 upon minus 2 is equals to p. Minus से minus cancel, ये आ गया 14. So the value of p is 14. And the last one is fourth one. The question is 8/9 raised to power 5 into 9/4 raised to power 5 is equals to 2 raised to power 2 raised to power p. Yes. So this you can write it as
8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम, एंड 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं रेज टू पावर 5, मल्टीप्लाइड बाय 3 को 3 की पावर 9 को 3 की पावर 2 एंड 4 को 2 की पावर 2 लिख के रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर p. सो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, सो 2 रेज टू पावर 15 अपॉन 3 रेज टू पावर 10 multiplied by 3 raised to power 10 upon 2 raised to power 10 is equals to 2 raised to power p. 3 raised to power 10 से 3 raised to power 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 raised to power 15 divided by 2 raised to power 10 equals to 2 raised to power p, which means 2 raised to power 15 minus 10 equals to 2 raised to power p, which means 2 raised to power 5 is equals to 2 raised to power p, which means the value of p is 5. Moving forward with question number 11th, first part. First part is minus 4 raised to power 3 into minus 3 raised to power 2 upon minus 4 raised to power 5 इंटू -3 रेज टू पावर 3. अब हमें पता है कि अगर बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट. तो ये क्या होगा, -4 रेज टू पावर 3 -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 रेज टू पावर 2 -3. तो ये हुआ -4 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 रेज टू पावर -1. तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन -4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन -3 की पावर 1. तो ये हुआ 1 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन 3. तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 48. इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, विच इज 2 अपॉन 3 रेज टू पावर 2, 2 अपॉन 3 raised to power 2 raised to power 3 multiplied by 2 upon 3 raised to power -8 multiplied by 3 raised to power -2 multiplied by 1 upon 9. सॉल्व करेंगे, ये पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. तो ये क्या होगा, 2 अपॉन 3 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 3 रेज टू पावर 8. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 9. बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे. तो 2 अपॉन 3 6 प्लस -8 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 1/9. तो ये हुआ 2 अपॉन 3 रेज टू पावर -2 इंटू 1/9 इंटू 1/9. तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 2. नेगेटिव पावर है इसलिए हम उसे क्या कर दे रहे हैं, रेसिप्रोकेट, अपॉन 1 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 9. तो ये हुआ 3 9 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 9. 9 से 9 कैंसिल आउट, सो योर आंसर विल बी 1 अपॉन 36. Moving forward to next question, which is question number 12. Question number 12 करेंगे अब हम. Find the value of x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच 3x इंटू 9 इज इक्वल्स टू 81. फाइंड तो 3x रहने दो, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 2, और 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81. तो इसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4. Since the bases are same, so this will be x plus 3 equals to, x plus 2 equals to 3 raised to power 4. bases same है तो powers को equate कर दो, x plus 2 equals to 4, x equals to 4 minus 2, which is 2. So the value of x is 2. Second one करते हैं, इसका second करते हैं. 5x is equals to 625.
Now I know 625 is 5 raised to power 4. So the value of x is 4. यहाँ पे आप लाइन लिखेंगे, since the bases are same, therefore we can equate the powers. Third one is 3 raised to power 2 raised to power x is equals to 1 upon 9 raised to power minus 3. तो ये क्या हो जाएगा, 3 raised to power 2x is equals to 9 upon 1 raised to power 3. तो ये हो गया 3 की पावर 2x इक्वल्स टू 3 की पावर 2 को 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं रेज टू पावर 3. तो 3 की पावर 2x इक्वल्स टू 3 की पावर 6, विच मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 6. x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 अपॉन 2 विच इज 3. सो द वैल्यू ऑफ x इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fourth one, 2 raised to power 3x minus 15 is equals to 8 raised to power minus 1. तो इसे और क्या लिख सकते हैं, इसको तो 2 raised to power 3x minus 15, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 raised to power minus 1. तो ये हो जाएगा 2 raised to power 3x minus 15 equals to 2 raised to power minus 3. Since the bases are same, तो हम powers को equate कर देंगे. So this is 3x equals to minus 3 plus 15 which is 12. So 3x is equals to 12. X equals to 12 divided by 3 which is 4. So the value of x is 4. Now you have to do question number 13 after this. Question number 13 says, by what rational number 3 by 2 should be divided minus 3 by 2 raised to power minus 3. इसको हम किससे डिवाइड करें, x से डिवाइड कर लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन आए वो हो 4 upon 27 raised to power minus 2. By what rational number? So let us take the rational number to be x. x ले लेते हैं रैशनल नंबर को. 3 by 2 रेज टू पावर माइनस 3 को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा. सॉल्व करो. इसे क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन माइनस 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 27 अपॉन 4 रेज टू पावर 2. ठीक है. अब ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 इज 8 एंड माइनस 3 की पावर 3 इज माइनस 27. डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 27 इंटू 27 अपॉन 4 इंटू 4. ठीक. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ये माइनस 8 अपॉन 27 एज इट इज रहेगा. ऊपर 4 इंटू 4, नीचे 27 इंटू 27 इज इक्वल टू x. So the value of x will be, ये minus 2 raised to power 3, this is 2 raised to power 2, this is 2 raised to power 2, this is 3 raised to power 3 into 3 raised to power 3 into 3 raised to power 3. तो ये हुआ minus 2 की पावर 3 into 5 6 7 upon 3 की पावर 9. So your answer is minus 2 raised to power 7 upon 3 raised to power 9. आप चाहो तो इसे further solve करके भी आंसर निकाल सकते हो. Let's do question number 14. Now what do you have to do in question number 14? Again, show that you have to verify. Now let's do question number 14. 1 by 2 raised to power minus 1 multiplied by minus 4 raised to power minus 1 whole raised to power minus 1 is equals to 2. Let's solve this. This will be 2 की power 1 multiplied by 1 upon minus 4
रेज टू पावर -1, तो ये हुआ 2 -2, सो -1/2 रेज टू पावर -1, जिसका आंसर आ जाएगा -2, और RHS क्या है 2। उसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है एंड LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। फाइन, यहाँ पे देखिए बॉक्सेस बने हुए हैं, इसका मतलब इस बुक में कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। फाइन, लेट्स डू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज -1/4 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर -1 इक्वल्स टू 1/256। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखो तुम इसे, ये क्या हो जाएगा, जब पावर की पावर है तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1/4 रेज टू पावर 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, तो ये कितना हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगी पावर 4। LHS लिया है हमने -2 -1 2 2 × 2 4, ठीक है। तो अब अगर माइनस की पावर इवन होती है तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो 1/4 रेज टू पावर 4 विच इज 1/4 × 4 × 4 × 4 विच इज 1/16 × 16, और हम सबको पता है कि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। फाइन, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज किया है a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m n, ठीक। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। फर्स्ट वन, अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ पेज नंबर 233 पे जो एग्जाम्पल है वो कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट इज you have to write down 27 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 you have to write this down in स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि तुम डेसिमल लगाओगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब द स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी 2.7 × 10 रेज़ टू पावर 7, क्योंकि डेसिमल को हमने 10 प्लेसेस राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया है। अगर इफ डेसिमल इज शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन पावर कैसी होती है पॉजिटिव, और अगर डेसिमल लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता है तो पावर होती है नेगेटिव। बी पार्ट क्या बोल रहा है 0.000076213। अब देखो डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेगा 1 2 3 4 5 प्लेसेस शिफ्ट किया तो आंसर विल बी 7.6213 × 10 रेज़ टू पावर -5। एक डेसिमल आपको सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। सी पार्ट इज 2.75675। अब ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डेसिमल से पहले एक नंबर और बाकी सब नंबर जो भी है वो डेसिमल के बाद। तो द आंसर फॉर दिस विल बी 2.75675 × 10 रेज़ टू पावर 0 which is 1. Let's do example number 2. एग्जाम्पल सेकंड करना है, सेकंड का ये पार्ट है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। काउंट द नंबर ऑफ zeros 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 6
4. शिफ्ट करो डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आ जाएगा 5.64 इंटू 10 रेज टू पावर -7. बी पार्ट. अब देखो इसका बी सी और डी पार्ट भी बहुत इजी है. देखो 0 पॉइंट कितने 1 2 3 4 5 2 1, तो ये क्या हो जाएगा डेसिमल कितना शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5 6, तो 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -6. सी पार्ट देखिए क्या है 2165 टाइम्स 0. अब देखो डेसिमल राइट से लेफ्ट शिफ्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर हो जाएगा 2.16 इंटू 10 रेज टू पावर 7. एंड डी पार्ट इज 1524 1 2 3 4. वापस डेसिमल देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है, तो 1.524 इंटू 10 रेज टू पावर 7 इज दी आंसर. एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे हम. द डायमीटर ऑफ सन इज 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर 9 and the diameter of earth is 1.2756 into 10 raised to power 7. Diameter of sun कितना है 1.4 into 10 raised to power 9 and diameter of earth given to you is 1.2756 into 10 raised to power 7. So क्या पूछा है हाउ मच बिगर इज द डायमीटर ऑफ सन टू द डायमीटर ऑफ अर्थ. तो हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है डायमीटर ऑफ सन टू डायमीटर ऑफ अर्थ. ठीक है, तो लिखो कैसे निकालोगे 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर 9 अपॉन 1.2756 इंटू 10 रेज टू पावर 7. ये अप्रोक्सीमेटली 1.3 है और ये 1.4 है. यहाँ पे कट के 2 आएगा, तो क्या लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 2 अप्रोक्स, या फिर 100 टाइम्स अप्रोक्स. सो द डायमीटर ऑफ सन इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स टू द डायमीटर ऑफ earth. Let's do now example number 4 you have to do on your own. Example 4 खुद से करो तुम होमवर्क में. Example 5 देखते हैं हम. Example 5 says the mass of Earth is 5.97 into 10 raised to power 24 kg and the mass of Moon is 7.35 into 10 raised to power 22 kg. ठीक है, so what you have to do, what is the total mass? आपको total mass निकालना है. ठीक है, ये सन है, सॉरी दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून. तो अगर मुझे इसकी पावर 22 करनी है तो क्या करूंगी मैं बताओ. अगर मैं डेसिमल को 2 प्लेसेस शिफ्ट करूं तो डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब तो ये हो जाएगा 597 इंटू 10 रेज टू पावर 24 इंटू 10 रेज टू पावर -2, तो ये हो गया 597 इंटू 10 रेज टू पावर 22 kg. सो टोटल मास क्या हो जाएगा 7.35 इंटू 10 रेज टू पावर 22 प्लस 597 इंटू 10 रेज टू पावर 22. Now since 10 raised to power 22 is common, तो हम ऐड कर लेंगे 7.35 plus 597 into 10 raised to power 22. ऐड करो 7 and 7 14, 9 and 1 10, 604.35 into 10 raised to power
22 kgs. So the total mass of Earth and Moon is 604.35 into 10 raised to power 22 kg. Now sixth example is write it into usual form. Usual form में लिखना है. First one is 3.02 into 10 raised to power minus 6. माइनस 6 का मतलब देखो, माइनस 6 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है. तो 3, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितना मूव करोगे 1 और फिर 5 प्लेसेस और मूव करोगे तो 1 2 3 4 5 और यहाँ आ जाएगा डेसिमल 02. तो देखो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस आगे डेसिमल शिफ्ट हो गया. तो ये बना 0.5 टाइम्स 0 302. बी पार्ट देखिए इसका क्या है 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4. तो ये क्या होगा 4, अब डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 4 प्लेसेस राइट हैंड साइड पे तो बन जाएगा 45,000. सी पार्ट देखिए, सी पार्ट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8. तो डेसिमल यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आंसर आ जाएगा 0.7 टाइम्स 0 and 8. एग्जाम्पल 6 के डी से लेकर एफ तक पार्ट्स आप खुद से करेंगे. एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द डाउट क्लास और लाइव क्लास. लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ लेंगे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो. लेट्स डू द लास्ट एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल नंबर 7. क्या एग्जाम्पल नंबर 7 एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में. साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. 31.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इंटू 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 16. तो क्या होगा 31.25 इंटू 2.5 ये होगा 10 रेज टू पावर माइनस 6 प्लस 16. तो 3125 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है आंसर 5 5 25 5 2 10 11 12 5 5 6 15. ठीक. 5 2 10 2 2 4 and 5 2 1 2 3 2 6 5 2 11 7 5 6 7 8 7 8 1 2 5. 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा 78.125 इंटू 10 रेज टू पावर 10. अगर इस डेसिमल को एक प्लेस और आगे शिफ्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 7.8125 इंटू 10 रेज टू पावर 11. फाइन. इसका बी पार्ट करेंगे हम. बी पार्ट इज 14 into 10 raised to power minus 3 divided by 5 into 10 raised to power minus 5. तो ये हो जाएगा 14/5 multiplied by 10 raised to power minus 3 minus 5. So this is 14/5 into 10 raised to power minus 3 plus 5 और ये 5 2s are 10 and 5 8s are 40. So the answer is 2.8 into 10 raised to power 2. Next one. C part 1.26 into 10 raised to power 8 divided by 7 into 10 raised to power 2. तो 1.26 upon 7 into 10 raised to power 8 minus 2. 7 ones are 7 and 7 8s are 56. तो ये आया 0.18 into 10 raised to power 6. एक डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट करनी है तो ये क्या हो जाएगा 1.8 into 10 raised to power 5. So this is all we are going to do today. I have given you your homework. Also you have to revise your classwork, and if you have any doubts you can ask me in the live class. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.